نئے الیکشن کے اعلان کے بعد بریگزٹ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس حوالے سے لندن میں لوگوں میں ملا جلا رد عمل پایا جا رہا ہے۔ بریگزٹ پر انہوں نے بیورو چیف یو کے غلام حسین ایوان سے کیا گفتگو کی، آئیے آپ بھی دیکھیے۔ The issue will be, will the governing party that gets in have a big enough majority to actually put the Brexit deal through? I myself was a Remainer, but now I'm beginning to see why that there would be benefits for the UK to be out of the EU. However, it is determined by whether we can have a parliament that is for Brexit and not against Brexit. Of course, when people are voting, as I am, my Conservative MP is a very good MP. I may not particularly be enamoured by Boris Johnson, but I will vote for my local Conservative MP because he serves our constituency extremely well. So if people think local, then they will look at their local MP and make a judgment. But if people think nationally, they may not like Boris Johnson, but they may like their local MP, and that could have an impact. ہمارے خیال کے مطابق نئے جو الیکشن ہیں اس کے بعد یہ بریکزٹ کا معاملہ جو ہے وہ ضرور حل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ کام کرے اور جائے، کیونکہ آلریڈی پچھلے کافی عرصے سے گورنمنٹ کافی چینج ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کر سکا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہوگی جو بھی ہوگی وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرے گی۔ یہ جو بریکزٹ کا مسئلہ چلا ہوا ہے، ابھی الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں، پہلے بھی ٹوری گورنمنٹ تھی، 2 دفعہ الیکشن آلریڈی ہو چکے ہیں، ابھی تھرڈ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جو بریکزٹ کا مسئلہ جو ہے نا ایسے حل ہوگا۔ دیر شوڈ ہیو بین ریفرینڈم ہوتا، سارے لوگ ووٹنگ کرتے، الیکشن تو وے آؤٹ نہیں ہے۔ ابھی ٹوری کو پھر وہ سیٹیں اور کم ہو جانی ہیں ان کی۔ بریگزٹ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے کہ بریگزٹ سے ہم بریگزٹ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ظاہر ہے نو ڈیل کے بغیر بریگزٹ کرنا ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ اس وجہ سے کوئی بھی پارٹی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکی، لیکن ظاہر ہے کوئی اور آپشن تھا نہیں پرائم منسٹر کے پاس، اس کو ہی ہیز ٹو اناؤنس دی الیکشنز۔ جنوبی مشرقی لندن میں 2 بسوں اور ایک گاڑی کے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 15 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی افراد میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ تفصیلات عدیل ڈینیل کے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جنوبی مشرقی لندن میں واقع سیونک روڈ پر 2 بسوں اور ایک گاڑی میں تصادم ہو گیا۔ لندن ایمبولینس سروس کے مطابق ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ 15 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ خطرناک ڈرائیونگ کے شبے میں پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی لندن فائر بریگیڈ نے 60 فائر فائٹرز کو جائے وقوع کی طرف روانہ کیا۔ لندن فائر بریگیڈ اسسٹنٹ کمشنر گراہم ایلس کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ کے عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے متعدد افراد کو بڑے نقصان سے بچایا۔ پولیس نے مسافروں کو متبادل راستہ استعمال کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سیونک روڈ کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر محمد نفیس زکریا نے وسطی لندن میں برٹش لائبریری میں لاہور لٹریری فیسٹیول LLF کے 4تھے آڈیشن کا افتتاح کیا۔ تقریب میں LLF کے بانی اور CEO راضی احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پرفارم کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین ایوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن میں ہونے والے 4تھے لاہور لٹریری فیسٹیول میں دنیا بھر سے ادیبوں، شعراء اور اہل قلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے اس اقدام پر راضی احمد اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی جنہوں نے عظیم دانشوروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ ہائی کمشنر نے امید ظاہر کی کہ لاہور لٹریری فیسٹیول عوامی گفتگو کے لیے مفید پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے اور برادریوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ I congratulate LLF founder and chief executive Razi Ahmed and his team on their excellent work of bringing the Lahore Literary Festival to London once again. I express my gratitude to Miss Dame Carol Black, Chair of British Library, for her support and courtesies that she has very kindly extended to the team as well as to me. I am confident that LLF would provide a useful platform for public discourse and facilitate dialogue among people with a variety of ideas and diverse cultural traditions. Have been suffering for so many years, not just since 5th August 2019, where they are under siege for the last 83 days now, but they have been suffering for decades. There's a cycle of violence which repeats itself time and again. And trust me that it's not coming something from somebody who represents the government of Pakistan, but I am referring to the documented accounts of these atrocities which have been documented and penned down
by the international organizations or the members of the civil society and the international organizations and the organizations that are actually internationally recognized. मिर्जा वहीद ने मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता मुहासरों की तारीख पर रोशनी डाली. We are privileged to have a stellar lineup of speakers, many of them who've flown from Pakistan, and it's juxtaposed with some of the most preeminent voices from England. So it's really one sensational, dazzling session after the other. प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर राजी अहमद ने हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की हमायत से उनके हौसले बुलंद हुए हैं. प्रोग्राम के इख्तिताम पर सामी बरादर कवास की जानब से शानदार महफिल समाह का इनकाद किया गया, जिसे हाज़रीन ने बेहद पसंद किया. गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़, UK. यूरोपियन लिटरेरी सर्कल के चेयरपर्सन मुसन्निफ़ा मरूफ शायर सदफ मिर्ज़ा ने कहा है कि नौजवान नस्ल को उर्दू लिटरेचर से जोड़े रखने के लिए ज़रूरी है कि यूरोप में उर्दू अदब के फ़रोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तकारीब सजाई जाएँ. ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से लंदन ऑफिस में बातचीत कर रही थी. उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं. जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन ऑफिस में मरूफ शायरा सदफ मिर्ज़ा साहबा मौजूद हैं, जो कि बैक वक्त डैनिश, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी में शायरी करती हैं, और ये पाकिस्तान की पहली खतून है जिन्होंने डैनिश कल्चर को और डैनिश की जो शायरी है उसको उर्दू के अंदर तहकीक करके बाकायदा तर्जमा किया है. आज इन्हीं से पूछते हैं कि वो लिटरेरी जो सर्कल है पूरे यूरोप का, उसकी चेयरपर्सन भी हैं. उनसे पूछते हैं कि पहले तो सबसे पहले लंदन आने का मकसद क्या था? जी, लंदन में आई थी फैज़ मेला में शिरकत के लिए, और बुनियादी मकसद ये था, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं. आने वाले साल को हम प्लान कर रहे हैं यूरोपियन लिटरेरी सर्कल वाले कि आइंदा साल में कैसे कैसे प्रोग्राम्स होंगे. अच्छा, आप पहली पाकिस्तानी खतून है जिन्होंने डैनिश का जो पूरा लिटरेचर है उसको उर्दू के अंदर बाकायदा तहकीक करके जो है उसको तर्जमा किया. आपको डैनिश एम्बेसी की तरफ से काफ़ी पजराई भी मिली. कैसे ख्याल है ये बुनियादी तौर पर मेरी जो भी किताब आ रही है, अभी हम बात कर रहे थे मेरे वालिद साहब पे, बरगद 800 पेजेस की है. बुनियादी तौर पे उसमें मैंने ये सारी चीज़ लिखी क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना शुरू किया डेनमार्क में, तो 4 मज़ामीन रखने थे. तो मैंने उसमें डैनिश, इंग्लिश, न्यूट्रिशन और हिस्ट्री ली. पंजाब यूनिवर्सिटी में? जी नहीं, कोपनहेगन में. जी. तो मेरे वालिद साहब ने जब पहली दफ़ा सागास पढ़े, मैंने उनको बताया कि स्कैंडिनेवियन सागास क्या हैं, तो वो कहने लगे ये तो अरब दास्तानें हैं. तो बुनियादी तौर पे ये अब्बा जी ने बीज लगाया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि तुम तहकीक करके लिखो, बजाय कि तुम एक किताब उठाओ और तर्जमा करो. तो फिर मैंने तहकीकी सफ़र शुरू किया, और ये तकरीबन 7 बरस लगे. मेरी पहली जो किताब 2015 में छपी, ज़बान यार मन दानिश, वो बुनियादी तौर पे मेरे बुज़ुर्गों के ही नाम है, क्योंकि ये वहाँ से आइडिया मिला था मुझे, बल्कि मुझे कहा गया कि इस पर काम कीजिए, तो मैंने किया. अच्छा, आप फैज़ अहमद फैज़ से कितनी मुतासर है कि आप वहाँ से जो डेनमार्क से यहाँ पर उनके मेले में शिरकत के लिए? इसके लिए सिर्फ मुतासरीन होना या किसी का असर गजीदा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जब यूरोपियन लिटरेरी सर्कल की बेसिकली बुनियाद थी, तो वो फैज़ अहमद फैज़ के शाना बशाना चली 7 साल तकरीबात थी. तो उस वक्त हमने ये नुक्ता उठाया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं कि पाकिस्तान से शायर आ रहे हैं, पाकिस्तान से शायर जा रहे हैं, उर्दू बोलने वाले उर्दू वालों को सुन के वाह वाह कर रहे हैं. जब तक तराजिम नहीं होंगे तो यूरोपियन फ़िज़ाओं में इसका कोई फ़ायदा नहीं. अच्छा सदफ, आप तकरीबन 15 से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका जो लिटरेरी सर्कल है उसकी चेयरपर्सन भी हैं. मैं जानना चाहता हूँ कि इन कंट्रीज़ के अंदर आप किस तरह कोशिश कर रही हैं कि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो हमारे कल्चर से जुड़ी रहे? ये सिर्फ एक फ़र्द वाहिद का तो काम है ही नहीं. अगर ये जितने ममालिक हैं, इनमें सब में मैं समझती हूँ कि जो वहाँ के हमारे मेंबर्स हैं वो उन मुल्कों में माशाल्लाह 30-30, 40-40 साल से बैठे हैं. अब जैसे देखिए, हमारे जो 4 फाउंडिंग मेंबर थे उनमें इमरान चौधरी हैं जो ब्रसल्स में मौजूद हैं, यहाँ पे आए थे वो प्रोग्राम के लिए भी. माशाल्लाह उनका बहुत काम है कॉलम्स के लिहाज से. फिर दूसरा तराजम किए उन्होंने, सफ़रनामे लिखे. उसके बाद हमारे साथ दूसरे थे मोहतरम आरिफ नकवी साहब, जो कि सिर्फ फैज़ के मेज़बान थे. ये तो एक अलग बात है, लेकिन उनके तारुफ के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने थिएटर लिखे, उन्होंने थिएटर किए, उन्होंने तराजुम किए, उन्होंने जर्मन ज़बान को उर्दू ज़बान के साथ मिलाया. तो आरिफ नकवी बहुत बड़ा नाम है. अमेरिका में पाकिस्तानियों की मारूफ तंजीम पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों के मसाइल के साथ साथ मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों पर तबादला ख्याल किया गया. तफसीलात जानते हैं वाशिंगटन से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में.
पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम वाशिंगटन DC की कांग्रेस बिल्डिंग में सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें कांग्रेस के अरकान, स्टेट डिपार्टमेंट के खसूसी नुमाइंदे, मारूफ स्कॉलर्स, पाकिस्तानी सफारत खाने के आला हुकाम समेत अहम शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस के अहम ओहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब में पाक अमेरिकन ताल्लुकात, पाकिस्तानियों के मसाइल और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को मौजू बहस बनाया गया। शुरुका का कहना था कि अक़वाम आलम को पाकिस्तान से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय करे। जो यहाँ पे एकेडमिया आता है ये थिंक टैंक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमें अपने ख्यालात बता के जाते हैं, हमारे ख्यालात यहाँ से सुन के जाते हैं, कम से कम हमारी सोच जो है उन तक पहुँचती है, उनकी सोच हमारे तक पहुँचती है। और उसके अलावा जो यहाँ पे हाउस के मेंबर्स आते हैं, मेंबर ऑफ कांग्रेस, वो भी कम्युनिटी को आकर अपना पैगाम देते हैं, जिससे कम से कम कम्युनिटी में ये एहसास पैदा होता है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कम्युनिटीज़ को बता सकते हैं, क्योंकि दे आर कम्युनिटी लीडर्स। तो जब हम इनको बताएंगे, ये स्प्रेड आउट करेंगे, और जितना हम लोग इस चीज़ को स्प्रेड आउट करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि आजकल और इन दिनों में जिस तरह कश्मीर का इशू उठ रहा है, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, इस प्रोग्राम से सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ी जो वजह यह है कि हम आपस में हम एक ब्रिज पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, और वो ब्रिज ऐसा है कि हम वक्तन फ़ौक़तन अक्सर औक़ात हम अमेरिकन को बताते हैं कि हम पीस लविंग कंट्री से हैं, और हमारा मकसद ये है कि हम आप लोग बताएं कि हम कौन हैं। Weeks will pass and the FAA will just put the plane back in the air without any scrutiny. They have the power to do that. The only reason they wouldn't is from public pressure. But they literally could do it in 2 weeks if they chose to. But it's absolutely wrong and inappropriate. पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस की इस इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका देरीना दोस्त और इनके बाहमी ताल्लुकात न सिर्फ बाहमी तौर पर बल्कि खित्ते और दुनिया के लिए भी नहायत अहमियत के हामिल हैं। तकरीब में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालम पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज कश्मीर में मज़ालम ढा रही हैं, ख़वातीन की असमत दरी की जा रही है, 13,000 से ज़ायद लड़कों को अगवा करके इंडिया भर की जेलों में बंद कर दिया गया है। You will have dozens of staffers जो वापसी पर अपने कांग्रेसमैन को ब्रीफ करेंगे कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग और दिस इज़ व्हाट वाज देयर डिमांड। और आपको मालूम है कि अभी मोर देन 100 कांग्रेसमैन उन्होंने कश्मीर पर एक ऐसा प्रिंसिपल स्टैंड लिया जो कश्मीरी आवाम की तर्जमानी करता था कि कश्मीरियों से आप पूछे कि वहाँ पर हालात क्या है। यानी आपको ताजुब होगा कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेनेटर मेरीलैंड के हॉल बर्न, जो वैसे बाय द वे टेक्निकली इज़ अ पाकिस्तानी अमेरिकन, जो उसकी पैदाइश कराची में पैदा हुई थी, वो अभी दिल्ली गया और दिल्ली में उसने कहा कि मैं तो श्रीनगर जाना चाहता हूँ, उसको इजाज़त नहीं मिली। लेकिन वो जो उसको इजाज़त नहीं मिली वो कांग्रेशनल हेयरिंग में नंबर 1 पॉइंट था कि अगर वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, एक ऐसे बंदे को जो अमेरिकन लेजिस्लेटर है, जो पूरे स्टेट का सेनेटर है, जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी का मेंबर है, उसको आप इजाज़त नहीं देते हैं, देयर इज समथिंग टू हाइड। शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि तंजीम के प्लेटफॉर्म से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग में वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। रूस में पाकिस्तान एसोसिएशन सेनेट पीटर्सबर्ग के ज़ेर एहतमाम यौम सियाह कश्मीर की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए वफ़द ने सेनेटर शुबली फराज की क़यादत में ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। शाहिद गुम्मन की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एसोसिएशन सेंट पीटर्सबर्ग के ज़ेर एहतमाम यौम सियाह कश्मीर की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ सदर पाकिस्तान एसोसिएशन सेंट पीटर्सबर्ग जान मोहम्मद और डॉक्टर मुख्तार ने सर अंजाम दिए। तकरीब के मेहमान खसूसी सेनेटर शिबली फराज, सेनेटर जवाद अब्बासी और मीर कबीर अहमद शाही थे, जबकि पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के सदर मलिक शहबाज और डॉक्टर जाहिद अली खान के अलावा कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। जान मोहम्मद, डॉक्टर जाहिद अली खान और दीगर का कहना था मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अगर भारत अपने मज़मूम मज़ाइम से बाज न आया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए राह हमवार करें। अगर ऐसा न हुआ तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। तकरीब से पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के सदर मलिक शहबाज, रिजवान गनी और दाऊद शाह ने भी खिताब किया। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, सेंट पीटर्सबर्ग। पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी स्टटगार्ट्स के ज़ेर एहतमाम 3 नवंबर को अज़ीमुश्शान महफ़िल मेलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकात किया जाएगा, जिसमें मुबल्लिग इस्लाम फ़ख्र सादात शाह अब्दुल हक कादरी और मशहूर सना खान आबिद हुसैन मसमूमी पाकिस्तान से ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। मुंतज़मीन ने अहले इस्लाम से इस रूहानी महफ़िल में शिरकत की पुरज़ोर अपील की है। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। 3 नवंबर बरोज़ इतवार 2 बजे दोपहर
पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मस्जिद अल मदीना स्टुटगार्ट बार्ड कंस्ट्रक्ट में एक अजीमुल शान मिलाद शरीफ प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। मैं बाहैसियत सदर पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी सदर मस्जिद अल मदीना पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि इस मुक़द्दस दिन में तशरीफ़ लाकर सवाब ज़रात हासिल करें। सैयद शाह अब्दुल हक कादरी साहब और इनके साथ सुनहान रसूल आबद हुसैन मासूमी साहब और यूरोप की शान सैयद जाफ़र अली शाह साहब और इनके साथ स्विट्ज़रलैंड से सैयद अली जिलानी तशरीफ़ लाएंगे। आप तमाम अशकान रसूल से गुजारिश है आप इस महफ़िल रूहानी में शिरकत करें और अपने दोस्त अहबाब को दावत दें। शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के शहर इक़्तिदार में डेरे। पेशावर मोड़ जलसा गाह में मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर लगा दिया गया है। आज नमाज जुमा के बाद बड़ा जलसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान खिताब भी करेंगे। JUI क़यादत आज आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी करेगी। शहबाज शरीफ 2:30 बजे कंटेनर पर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ का ख़त भी पढ़कर सुनाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे फैसल रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। फैसल, बताएगा आज़ादी मार्च का आज का क्या प्लान है और मौलाना फजलुर रहमान कब पहुँचेंगे? फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे कि आज आज़ादी मार्च का प्लान क्या है और जमातों में कौन कौन से कायदीन हैं जो आज जलसे से खिताब करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज़ादी मार्च जो है वो गुज़श्ता रात यहाँ इस्लामाबाद में पहुँच चुका है। पेशावर मोड़ के पास जो है वो G9 के मरकज़ के बिल्कुल सामने कश्मीर हाईवे पे जो है वो आज़ादी मार्च के शुरका का पड़ाव है। जमीयतुल उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो 3 बजे के करीब जो है वो यहाँ सुबह आए थे और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ मुख्तसर खिताब किया और उन्होंने कहा कि जो है वो न सिर्फ आज़ादी मार्च का हिस्सा जो है वो जलसा है बल्कि धरना भी होगा और जब तक जो है वो हुकूमत जो है जो उनका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, जब तक वो इस्तीफ़ा लेकर नहीं जाते वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। सुबह से जो है वो यहाँ पर जो सेकंड टियर के जो रहनुमा हैं जमीयतुल उलमा इस्लाम के, वो मुसलसल स्टेज पर आके जो है वो खिताब करते हैं। शुरका का जो जोशो वलवला है उसको गरमाया जाता है और उसके बाद जो है वो यहाँ जो नगमे हैं और वो सारे जो हैं वो यहाँ चलाए जाते हैं। अब जो प्रोग्राम है अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर जमीयतुल उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ नमाज जुम्मा जो है वो अदा की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जलसा होगा। जलसे में न सिर्फ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान बल्कि उनके साथ कौमी वतन पार्टी के रहनुमा शेरपाव साहब यहाँ पे मौजूद होंगे। यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा असफंदियार वली मौजूद होंगे। यहाँ शुनीद है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक उनके आमद के हवाले से जो है वो काफ़ी तजब्जुब पाया जाता है। रहीम यार खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे के बायस जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद में जो है वो ताख़ीर हो सकती है और अगर वो नहीं आते तो उनकी सूरत में पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत है वो यहाँ पर जो है वो आएगी। जलसे का आगाज़ जो है वो नमाज जुम्मा के बाद होगा और मौलाना फजलुर रहमान ने ये पहले ही ऐलान कर रखा है कि जलसे के बाद, जलसे के दौरान ही जो है वो अगले लाए अमल का जो है वो ऐलान होगा। अब क्या मार्च के आज़ादी मार्च के शुरका अपने कायदीन के हमरा यहाँ कश्मीर हाईवे से आगे मार्च करते हैं जो है वो डी चौक की जानिब या अपारा की जानिब वो मार्च करेंगे या फिर जो है वो आज कश्मीर हाईवे पर ही पड़ाव होगा या शाम को ये सिलसिला जो है इसको यहीं पे ख़त्म किया जाता है और धरने की नई तारीख दी जाती है। ये तमाम बातें जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर चहमगोइयों की सूरत में जो है वो मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो हतमी ऐलान है वो मौलाना फजलुर रहमान ने करना है, जमीयतुल उलमा इस्लाम ने करना है और अभी तक उन्होंने जो अगला प्लान है उसको सीगे राज में रखा है और वो उन तक महदूद है। अभी तक जो है उस हवाले से वाज़ेह चीज़ कोई सामने नहीं आई क्योंकि ये जलसा होगा नमाज जुम्मा के बाद, तो उसके बाद जब कायदीन खिताब करेंगे तो जमीयतुल उलमा इस्लाम और दीगर जमातें जो मुत्तहिदा अपोजिशन की हैं वो मुश्तरका लाएअमल देती हैं और उसके बाद जो है उनका आइंदा लाएअमल क्या होगा वो उसको मौलाना फजलुर रहमान ही लीड करेंगे। जी, लाएअमल आज बताया जाएगा। पेशावर मोड़ पर आज़ादी मार्च का कंटेनर और शुरका मौजूद हैं, तकारीर और खिताबात किए जा रहे हैं। फिर आप हमें इससे मुतल्लिक़ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। JUI के आज़ादी मार्च के शुरका ने जलसे से कबल तैयारियां शुरू कर दी। खाने की बात करें तो कोई चावल बना रहा है तो किसी ने चिकन बनाया है। जलसे की शुरका की मसरूफियात से मुतालिक जानेंगे, वहां पर मौजूद हैं इमरान वसीम। जी इमरान, बताइएगा क्या मसरूफियात है शुरका की, क्या कुछ बना रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जलसा गाह में यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के शुरा यहाँ पर मौजूद हैं। और जो शुरा मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के हैं, उन्होंने जलसे की बाकायदा तौर पर तैयारी शुरू कर दी है। जलसा जो है वो जुमातुल मुबारक की जो नमाज है उसके बाद शुरू होना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने सुबह नाश्ता किया है और जलसे में शिरकत करने से पहले, नमाज जुमा की तैयारी से पहले इन्होंने अपना खाने का जो बंदोबस्त है वो शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो शुरा थे उन्होंने चावल की जो है वो खाना तैयार किया है, चावल बना के खाए जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर चिकन गोश्त जो है वो भी बनाया जा रहा है, उसके लिए सब्जी वगैरह जो है वो भी काट ली गई है, टमाटर प्याज वगैरह काट कर अपना दोपहर का खाना जो है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि जुमा नमाज से पहले वो अपना दोपहर का खाना खाकर जो है वो यहाँ पर फ्री हो जाएं। यहाँ पर बहुत सारे तादाद में लोग मौजूद हैं, तो जो छाबड़ी फरोश हैं यहाँ पर या जो रेडी बान है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ताकि यहाँ पर लोगों को जो खाने की ज़रूरत है उसको भी पूरा किया जा सके। यहाँ पर भुट्टा जो है वो भी फ़रोख्त किया जा रहा है, छलियाँ यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। इसके अलावा और भी जो खाने पीने की छोटी मोटी अशिया फ़रोख्त करने वाले हैं, छाबड़ी वाले हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मौलाना फजल रहमान के जो आज़ादी मार्च के साथ शुरा यहाँ पर आए थे, बहुत सारे शुरा ये जो हमारे साथ यहाँ पर फुटपाथ है, यहाँ पर ये जो है रेस्ट कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, खाना तैयार किया जा रहा है। और ऐसे शुरा भी मौजूद हैं जो अखबार यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मुल्क की जो हालात हाजरा है उससे जो है वो बाखबर हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, हमें जलसागाह की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रास्ते बंद हैं। फैजाबाद, डी चौक, कश्मीर हाईवे, रावलपिंडी में मोरगा, सवा कैंप और दीगर अहम मकामात से कंटेनर्स हटाए नहीं गए हैं, जबकि रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात लेंगे। मरियम मलिक हमारे साथ मौजूद है। मरियम, बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मौलाना का काफ़िला रात गए इस्लामाबाद H9 जलसागाह पहुंच चुका है। मौलाना को इस्लामाबाद एंटर होने में कोई रास्ता बंद नहीं मिला, अलबत्ता यहाँ के रहने वालों को तकरीबन हर रास्ता ही बंद मिल रहा है और उनकी मुश्किलात में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया। अगर कल की बात की जाए तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अहम शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था और हालात और सिक्योरिटी के पेश नज़र स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया था और आज भी बंद रखने का फैसला किया गया है। आज मौलाना इस्लामाबाद एंटर हो चुके हैं। आज उनका इस्लामाबाद में पहला दिन है, जिसमें शहरियों की अगर बात की जाए स्पेशली उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले मेट्रो सर्विस जो थी वो भी शहरियों के लिए मुअत्तल कर दी गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि शहरियों ने अपने लिए अपनी मदद के तहत मुतबादल रास्ते खुद ही ढूंढ लिए हैं। ये एक सुरंग के थ्रू वो अपने दफातर की तरफ जाने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जानिब से भी मुतबादल रास्ते दिए गए थे वो भी आपको हर जगह से बंद मिलते हैं और जो रास्ता आधे घंटे में तय होता था वो घंटा लग जाता है उसको पहुंचने में। आज मुझे भी आते हुए ऐसा ही हुआ, घंटे के बाद मैं जाकर ऑफिस पहुंची हूं। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और काफ़ी उनमें गुस्सा भी पाया जाता है कि आज़ादी मार्च अपनी जगह, लेकिन इस्लामाबाद के रिहायशों के लिए और रावलपिंडी के रिहायशों के लिए कोई ऐसा मुतबादल रास्ता बना देना चाहिए था ताकि शहरियों को इतनी तकलीफ ना उठाना पड़ती। जी आपको बताएं कि DHQ अस्पताल झंग में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत ने एक हफ्ते के दौरान 7 बच्चों की जान ले ली। CEO हेल्थ ने सेक्रेटरी पंजाब हेल्थ को रिपोर्ट अरसाल करके हेड ऑफ डिपार्टमेंट और 2 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। देखते हैं अबू तुराबी की इस रिपोर्ट में। ना कोई हड़ताल और ना ही डॉक्टर्स की कमी। DHQ अस्पताल झंग में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत ने 7 बच्चों की जान ले ली। CEO हेल्थ की जानिब से सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को भिजवाई गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मासूम बच्चों की हलाकत डॉक्टर्स के चेकअप ना करने पर हुई, जिस पर शहरी तशवीश में मुब्तला हैं। 7 दिन में 7 बच्चे फौत हो चुके हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत को चाहिए कि इधर इसका नोटिस ले। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कॉल के बावजूद डॉक्टर नासिर अब्बास और डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने मरीज बच्चों को चेक ही ना किया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आयजा यास्मीन ने 8 माह से वार्ड का एक भी विजिट ना किया। रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो मसीहा बुरा मान गए और अस्पताल में हड़ताल कर दी। 30 बच्चे दाखिल थे और उनको देखने के लिए जब हुक्म दिया गया सीनियर डॉक्टर्स को कि कंसल्टेंट्स को कि वो आएँ और उनकी देखभाल करें, जिसकी वजह से उन्होंने नेग्लिजेंस शो की है और वो रिपोर्ट अभी भेज दी गई है। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंक्वायरी करती है, फिर अगला लाहे अमल देखा जाए। CEO हेल्थ ने साफ अल्फाज में बच्चों की हलाकत का जिम्मेदार डॉक्टर्स को करार देकर कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान सुल्तान के साथ अबू तुराबी 92 न्यूज़ झंग। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।